شہر حیدرآباد، جس کی بنیاد میں محبتیں ہیں، تہذیب و تمدن ہے، آداب و اخلاق، علم و فن، مہمان نوازی، شعر و ادب اور رواداری رچی بسی ہے۔ یہ قدیم اقدار کا شہر ہے اور جدید رجحانات کا بھی شہر ہے، اور سب سے بڑھ کر 400 سال سے یہ اردو کا شہر ہے۔ اس شہر کو قطب شاہی خاندان کے عظیم الشان بادشاہ محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ اس شہر کو اس دور میں منصوبہ بند طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد کو محمد قلی نے اپنی محبوبہ بھاگمتی، جسے بعد میں حیدر محل کا خطاب دیا گیا تھا، اسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ جس شہر کے خمیر میں محبت رچی بسی ہو، اسے بھلا پھلنے پھولنے اور پنپنے سے کون روک سکتا ہے؟ 13ویں صدی کے آخر میں مسلمان شمالی ہند سے دکن میں وارد ہوئے اور اپنے ساتھ زندگی کے جدید تصورات اور معاشرت کے نئے اسالیب اٹھا لائے، جن کے ذریعے نئے سماج کی تنظیم پڑی۔ علماء و صوفیاء نے اپنی محفلیں سجائی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو بھی یہاں قدم رنجا ہوئے۔ دور خلجی و تغلق کے بعد دکن میں سلطنت بہمنی کی تاسیس ہوئی، تو اس سلطنت کی آب و تاب صدیوں تک دکن کو منور کرتی رہی۔ بہمنی سلاطین بڑے مدبر حکمران تھے۔ سلاطین بہمنی کا سب سے بڑا کارنامہ اردو زبان کی سرپرستی ہے، جس کی وجہ سے دکن میں جگہ جگہ ادبی مراکز قائم ہوئے، جن میں گلبرگہ، بیدر، احمد نگر، بیجاپور، اورنگ آباد اور گولکنڈہ آج تک ادبی مراکز کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ محمد تغلق نے جب دولت آباد کو پائے تخت بنایا، جو پہلے دیوگیری کہلاتا تھا، تو اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ علماء کی 1400 پالکیاں آئیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو فوج پر بھی تھی، دفتری لوگوں پر بھی منحصر تھی، اور ان کی جو زبان تھی وہ زبان لشکری اردو یا ملوا زبان تھی، جو سارے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور ہندوستان کی تمام زبانیں بولنے والے اس سے مانوس تھے، زیادہ اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے، جبکہ عربی اور فارسی ان کے لیے غیر مانوس زبانیں تھیں۔ اسی لیے ان علاقوں کے عوام تک پہنچنے کے لیے علماء کو اس زبان کا سہارا لینا پڑا، اور اپنی مذہبی زبان عربی اور تہذیبی زبان فارسی کو چھوڑتے ہوئے مقامی زبان میں اپنی تعلیمات یہاں کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی پڑی۔ بہمنی دور میں جو اب تک کی دستیاب معلومات ہیں، ان کے اعتبار سے جو پہلی مثنوی دستیاب ہوتی ہے وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن کا علاقہ 5 خود مختار ریاستوں میں بٹ گیا۔ بیجاپور پر عادل شاہی، احمد نگر پر نظام شاہی، برار پر اماد شاہی، بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈے پر قطب شاہی سلطنت قائم ہوئی۔ ان 5 سلطنتوں میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت اردو شعر و ادب کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اردو کی ترقی کے سلسلے میں عادل شاہی دور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کی تخلیقی سرگرمیوں میں فن تعمیر اور خطاطی بھی نمایاں ہے۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ذوق شعری رکھتا تھا اور اہل علم و فن کی قدردانی کیا کرتا تھا۔ عادل شاہی خاندان کے تقریباً تمام حکمرانوں میں یہ صفت قدر مشترک تھی۔ عادل شاہی حکمرانوں میں علی عادل شاہ ثانی شاہی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ علی عادل شاہ ثانی جو شاہی کے تخلص سے مشہور ہوا ہے، اس کے زمانے کے ملک الشعراء محمد نصرت نصرتی نے اپنی 3 ایسی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جو قدیم اردو کا بہترین سرمایہ کہی جا سکتی ہیں۔ اس کی پہلی بزمیہ مثنوی گلشن عشق ہے، اور دوسری مثنوی جو رزمیہ ہیں علی نامہ ہے۔ یہ دونوں ہی مثنویاں اپنی اپنی جگہ نمائندہ مثنویاں کہی جا سکتی ہیں۔ گلشن عشق میں محمد نصرت نصرتی نے کنور منوہر و مدمالتی کی محبت کی داستان کو پیش کیا ہے، اور ضمنی داستان چمپاوتی کی جو اس میں شامل کر دی ہے، وہ اس خوبصورتی سے اس نے شامل کی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مثنوی اس کا اپنا تخلیقی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کہانی اس نے ہندوستانی روایات سے مستعار لی ہیں۔ دوسری طرف
अली नामा जो है वो मसनवी रज़मिया मसनवी की एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई दूसरा नमूना हमें ताहाल उर्दू अदब में दस्तयाब नहीं होता। गोलकुंडे के पहले 4 सलातीन सुल्तान कुली, जमशीद कुली, सुबहान कुली और इब्राहिम कुली अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा मसरूफ़ रहे। इब्राहिम कुली अगरचे कि खुद शायर न था, लेकिन उसके दौर में गोलकुंडे में उर्दू दक्कनी ज़बान व अदब का ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि अवाम के अलावा खुद शहजादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह शेर व अदब का रसिया था, जो आगे चलकर उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहलाया। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कनी के अहम और नुमाइंदा शायरों में से एक है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि न सिर्फ दक्कनी बल्कि इस एतबार से कि वह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है जिसने हरूफ तहजी के एतबार से गज़लियात कहीं और मुकम्मल एक दीवान तरतीब दिया। इस एतबार से भी उर्दू अदब की तारीख़ का एक मुमताज़ और मोतबर शायर है। जब हम इसके कलाम का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह हकीकी मानों में एक अवामी शायर था। अगरचे वो बादशाह था और महलात के ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन तख्लीक़ी एतबार से हम देखते हैं कि उसके ज़हन व फ़िक्र पर अवामी ज़िंदगी का गहरा असर था। चुनाचे उसके कुलियात में हमको दक्कन के जो अवामी तहज़ीब के मज़ाहिर हैं, दक्कन के त्यौहार, दक्कन की रसूमात और दक्कन के मौसम, दक्कन के फल, दक्कन के मेवे, दक्कन की तरकारियाँ, हत्ता कि दक्कन के जानवरों और परिंदों का ज़िक्र भी उसकी शायरी में हमको नज़र आता है। कुतुब शाही दौर का एक अहम फ़नकार मुल्ला असदुल्ला वजही गुज़रा है। ये इस एतबार से अहम है कि उसने दक्कनी शायरी के अलावा दक्कनी नस्र में भी अपनी तख्लीक़ात यादगार छोड़ी हैं और ये उर्दू का पहला दास्तान नवीस फ़नकार गुज़रा है जिसने सबरस के नाम से एक लाजवाल दास्तान दक्कनी ज़बान में लिखी। ये उर्दू की पहली दास्तान है और सबरस के ज़रिए उसने दक्कनी ज़बान को बाएक जस्त इर्तिक़ा की कई मंजिलें तय करवा दी कि वो ज़बान जो हमको 45 साल क़ब्ल बीजापुर के शाह बुरहानुद्दीन जानम के नसरी रिसाले कलिमतुल हक़ाइक़ में घुटनों के बल चलती हुई नज़र आती है, वही ज़बान 45 साल बाद मुल्ला वजी की सबरस में दौड़ती, अटखेलियाँ करती और छलांगे लगाती नज़र आती है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हमले के बाद कुतुब शाही सल्तनत का खात्मा हुआ और रियासत गोलकुंडा मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन गई। मुग़ल सूबेदार की हैसियत से रियासत गोलकुंडा में नवाब क़मरुद्दीन अली ख़ान आसिफ जाह अव्वल को मुक़र्रर किया गया और रियासत का पायतख्त गोलकुंडा से औरंगाबाद मुंतकिल हो गया। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद तवाइफुल मुल्की फैल गई, लेकिन नवाब क़मरुद्दीन ख़ान मुग़ल सल्तनत की वफ़ादार ही रहे। लेकिन जब इंतशार हद से गुजर गया तो उन्होंने 1724 ईस्वी में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और इस तरह हैदराबाद में आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद पड़ी। आसिफ जाह सानी निज़ाम अली ख़ान के दौर में औरंगाबाद से पायतख्त हैदराबाद मुंतकिल हुआ और चौमहला पैलेस में वो तख्त नशीन हुए। आसिफ जाह सानी ने इल्म फ़न, शेर व अदब की भी भरपूर सरपरस्ती की। आसिफ जाही तमाम हुक्मरानों ने भी इस रवायत को बरकरार रखा। एक अरसे तक रियासत हैदराबाद में फ़ारसी को नज़्म व नक़्त में ऊंचा मकाम हासिल था, लेकिन आसिफ जाही हुक्मरानों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि रियासत की बका, तरक्की और अवाम की बहबूदी व खुशहाली का इनेक़ाद इस पर है कि अवाम की ज़बान को आगे बढ़ने और फूलने फलने का मौका दिया जाए। नवाब मीर महबूब अली ख़ान आसिफ सादस के अहद में पहली बार उर्दू को सरकारी ज़बान का मुकम्मल दर्जा हासिल हुआ। उर्दू को रियासत हैदराबाद में सरकारी ज़बान बनने में तकरीबन 15 साल तवील मुद्दत का सफ़र तय करना पड़ा। बशीरुद्दौला की जो खिदमात हैं रियासत हैदराबाद में उर्दू को नाफिज करने के सिलसिले में, वो बहुत अहमियत रखती हैं। उन्होंने सबसे पहले रियासत हैदराबाद में फ़ारसी के बजाय
اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لیے بہت مؤثر تحریک چلائی۔ انہی کی تحریک پر سب سے پہلے سن 1871 میں عدالتوں میں اردو میں بیانات کی قلم بندی کی اجازت دی گئی۔ سن 1886 میں معتمدین کے دفاتر میں بھی اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کیا گیا۔ اس بارے میں آصف سادس سے منظوری لینے کے بعد مدار المہام سالار جنگ دوم کے احکام مورخہ آخری ذیقعت 1303 ہجری مطابق 30 اگست 1886 جاری ہوئے، جس میں معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ معتمدین کے دفاتر میں اردو کو نافذ کرنے کے بعد ریاست حیدرآباد میں اردو کو مکمل طور پر سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سلسلے میں شمالی ہند کے جن معتبر شخصیتوں کی مدد لی گئی ان میں اماد الملک، محسن الملک، چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ریاست حیدرآباد میں بعہد آصف سادس نواب میر محبوب علی خان 1884 عیسوی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اکبر حیدری 1911 عیسوی میں معتمد تعلیمات ہوئے تو انہوں نے حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے بڑی دلچسپی لی اور بہت توجہ دی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مدارس میں اردو ذریعہ تعلیم مقرر کرنے کا جب احکام جاری کیے تو اسے بڑی خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور اکبر حیدری کے علاوہ حیدرآباد میں حیدرآباد ایجوکیشنل کانفرنس نے اس سلسلے میں یعنی حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر تحریک چلائی۔ اس ایجوکیشنل کانفرنس کے اراکین یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جہاں علوم و فنون اور سائنس کی تعلیم اردو میں دی جائے۔ اکبر حیدری نے ضروری انتظامات کرنے کے بعد ایک تفصیلی یادداشت تیار کی یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں، اور اس یادداشت کو اس وقت کے وزیر تعلیمات فخر الملک بہادر نے اپنی عرضداشت مورخہ 22 اپریل 1917 کو آصف صابے کی خدمت میں پیش کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو ذریعہ تعلیم کے لیے یہ استدلال پیش کیا کہ اردو ریاست حیدرآباد کی سرکاری زبان ہے اور ملک کی بھی ایک بڑی مقبول زبان ہے، اور ریاست حیدرآباد کی آبادی کی اکثریت اس زبان کو سمجھتی اور بولتی ہے۔ اکبر حیدری کی یادداشت کی اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چوتھے روز آصف صابے نے 26 اپریل 1917 کو فرمان صادر کیا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، لیکن انگریزی ایک مضمون کی حیثیت سے ہر طالب علم کے لیے لازمی گردانی جائے گی۔ جامعہ عثمانیہ بعہد آصف صابے میر عثمان علی خان دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کا قیام 14 اگست 1917 عیسوی میں ہوا۔ اردو زبان میں سائنس اور دیگر علوم کی کتابوں کی کمی کے باعث ابتدا میں ذریعہ تعلیم اردو میں دشواری پیش آئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں جامعہ عثمانیہ میں تالیف و ترجمہ، جسے عرف عام میں دارالترجمہ کہتے ہیں، قائم کیا گیا اور اس دشواری پر قابو پا لیا گیا۔ تالیف کتب کے لیے احاطہ یونیورسٹی میں پریس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جامعہ عثمانیہ کا قیام 1918 میں ہوا۔ اس سے ایک سال قبل 1917 تاریخ بتائی گئی ہے کہ
14 अगस्त 1917 को दारुतर्जुमा जामिया उस्मानिया का क़याम अमल में लाया गया। क्योंकि 1918 में यूनिवर्सिटी की तालीम का आगाज़ हो रहा था, तो लाजमी है कि सबसे पहले इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए उलूम व फ़नून की किताबें दस्तयाब नहीं थीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उलूम व फ़नून की किताबों का इंतखाब किया गया और उन किताबों को तर्जुमा करने के लिए दारुतर्जुमे में मुतरजमीन का इंतखाब अमल में लाया गया। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून जैसे मेडिकल की किताबों की ज़रूरत थी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी जैसे साइंसी उलूम की, उसके अलावा क़ानून की किताबों की ज़रूरत थी। इंजीनियरिंग की क्लासेस भी उर्दू में होती थी। ये तमाम उलूम व फ़नून की किताबों को तर्जुमा करने के लिए सारे हिंदुस्तान से आलिम व फाजिल लोग जमा किए गए, जो उलूम व फ़नून की किताबों को तर्जुमा करने के बाद नाज़िर अदबी और नाज़िर मजहबी उस पर नज़र सानी करते, जब तक उनका मुसद्दक़ा सर्टिफिकेट ना हो किताब शाये करने के लिए नहीं भेजी जाती थी। एक मुख्तसर से अंदाज़े के बाद ये बताया गया है कि 1917 से लेकर 1950 तक दारुतर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में 129 मुतरजमीन का तकर्रुर अमल में आया। सल्तनत आसिफी की सरकारी ज़बान उर्दू और उसके साथ ही जामिया उस्मानिया का क़याम, दारुतर्जुमा, दायरतुल मारूफ का क़याम और ज़रिए उर्दू आला तालीम का हुसूल रियासत का दारुल हुकूमत हैदराबाद उर्दू का गहवारा बना। 1940 के बाद अखबारात का मिजाज हैदराबाद में बदला, ज़रूर बदला। इससे पहले तो ये कि जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शाही हुक्मरानी थी, ख़ानदानी हुक्मरानी थी, निज़ाम की हुक्मरानी थी, तो मदासराई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और शाही फरमान जारी किए जाते थे, उनको शाया किया जाता था। ज़्यादातर सर्कुलेशन इन्हीं बुनियादों पर हुआ करता था। लेकिन अवामी मसाइल का भी ज़िक्र था, ऐसा नहीं कि सिर्फ फरमान ही शाया होते थे। उस दौर के अखबारात में बहुत से ऐसे सोशल मसाइल, पॉलिटिकल इश्यूज़ वगैरह को भी कवरेज किया जाता था और इस वजह से ये अखबारात मेरी दानिश में मुकम्मल ही थे। इनको आप जो है कोई ऐसे अखबार नहीं कह सकते जो गैर मेयारी थे। इनका अपना मेयार था। मेयार का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो हर दौर में अलग होता है। उस दौर का जो मेयार था, जो मिजाज था सहाफ़त का, उस लिहाज से वो हैदराबाद से शाया होने वाले अखबार निज़ाम, गज़ेट, क़याम वगैरह जो है, मीज़ान, ये अपना एक मिजाज रखते थे। सुबह दक्कन, अगर किसी अखबार का ज़िक्र किया जा सकता है तो वो रहबर दक्कन है, जो 1950 तक रहबर दक्कन के नाम से शाया हुआ। ये अखबार 1950 से बंद हो गया था पूरे सेक्शन के बाद। इसके बाद इसका रिवाइवल हुआ, तो रिवाइवल में दूसरा डिक्लेरेशन लेकर इसका नाम रहनुमाए दक्कन रखा गया। 50 ta 60 की दहाई में हैदराबाद में उर्दू माहौल की जरखेज़ी। ये कोई 40-50 साल पहले के हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वो हैदराबाद था जिसमें एक तरह से हर तरफ उर्दू का माहौल छाया हुआ था। उर्दू तहज़ीब का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, समझिए एक तरह की उस तरह की वो तहज़ीब थी जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे। मैंने उस वक्त कुछ लिखना शुरू किया था नया, तो उस ज़माने में बहुत अच्छे लिखने वाले मौजूद थे। मखदूम साहब मौजूद थे, सुलेमान अरीब थे, वहीद अख्तर, शास्तम कनत, इब्न अहमद ताब, औज याकूबी, बाल किस किस का नाम लें हम, ये सब के सब लोग थे। और माहौल कुछ इस तरह का था उसमें कि गोया कोई रस्मी किस्म की चीज़ नहीं थी, बल्कि गैर रस्मी तौर पे बेतकल्लुफ़ अंदाज में हम लोग रोज़ मिला करते थे। और मिलने के 2 अड्डे थे, एक 17, अब 17 नंबर क्या समझेंगे, वो था 17 नंबर मुजर्रद गाह जिसको कहते थे उर्दू में, बैचलर्स क्वार्टर्स। तो ये 17 मुजर्रद गाह ये पता था सबा का। तो रोज़ाना सुबह 11 बजे से हम लोग सब वहाँ जमा होते थे, सुलेमान अरीब आते थे और वहाँ से गोया वहाँ से हिंदुस्तान का एक बहुत सफ़े अव्वल का रिसाला सबा छपता था। हैदराबाद के चंद मशहूर अदबा व शुरा के नाम अमजद हैदराबादी, मखदूम मोहिउद्दीन, सिकंदर अली वजद, सुलेमान अरीब, शाहिद सिद्दीकी,
खुर्शीद अहमद जामी, शास्तम कनत, मुगनी तबस्सुम और मुश्तबा हुसैन वगैरह हैं। इनके अलावा डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का नाम सरे फहरिस्त इसलिए है कि दक्कनी अदब की बाजियाबी और इदारा अदबियात उर्दू का क़याम और सबरस का इजरा ज़ोर साहब का एक अजीम कारनामा है और उर्दू अदब के लिए उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। हैदराबाद के उस उर्दू माहौल पर रोशनी डालूं जो मेरे ज़माने में था या जो मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में था या नौजवानी के ज़माने में था, तो साहब इसके लिए थोड़ी सी रिवायत से भी हमारा रिश्ता जो बनता है वो भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हैदराबाद सरासर उर्दू का माहौल था हैदराबाद में। और ये उर्दू का माहौल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के फ़ौरन बाद, जब मखदूम मोइनुद्दीन, मीर हसन, मिर्ज़ा शकूर बेग, अशफाक हुसैन, आकिल अली ख़ां वगैरह जैसे लोगों के अचानक उभरने से, आबिद अली ख़ां, महबूब हुसैन जिगर और इन सब के उभरने की वजह से जो माहौल पैदा हुआ था, उसका तसलसल हम लोगों की तालिब इल्मी के ज़माने तक, जो मैं 50s की बात कर रहा हूँ, 50 की दहाई में, 60 की दहाई में जो माहौल वो हमको मिला था विरसे में, और ये बड़ा तवाना माहौल था। मखदूम और सिकंदर अली वजद वगैरह के हाथों से निकला हुआ माहौल था। तो मैं तो देखता हूँ कि सब हमारे ज़माने में अदबी महफिलें जो हुआ करती थी वो बड़ी बेमिसाल, ऐसे लाजवाब मुशायरे हुआ करते थे, कुलहीन मुशायरे, अदबी महफिलें रोज़मर्रा में शामिल थे हमारे, चाहे वो सुलेमान अरीब हों, चाहे शाह सिद्दीकी हों, खैरात नदीम हों, शमसुद्दीन ताबा हों, या और कई नाम हैं जिनका हो सकता है बयान करना मुमकिन नहीं होगा, मगर ये कि बड़ा ज़र्रीन माहौल था। देखिए कि जब हमने शायरी शुरू की, ये 5वीं दहाई थी 1950 से, तो उस ज़माने में मखदूम, जामी, अरीब, इन लोगों का बाशोरा था, इब्न अहमद ताब थे, मनोहर लाल शारिब थे, ये लोग मुशायरे पढ़ते थे, हम इनको सुनते थे और मुतासिर होते थे। ये दरअसल तरीक़ी पसंद ग्रोह था। और लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब जदीदियत की तरफ रुझान शुरू हुआ तो उस वक्त खुद मखदूम साहब ने जदीद शायरी की, उनकी बात बड़ी आज़ाद नज़में हैं जो काफ़ी जदीद हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन लोगों का चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो गया और 60 की दहाई से फिर नौजवान नस्ल सामने आई, जिसमें अलीउद्दीन नवीद, ग़ियास मतीन, रऊफ़ ख़लिश, हसन फ़र्रुख, मसूद आबिद और ये बहुत से शोरा थे। तो उस वक्त ये लोग ज़्यादा मुशायरे नहीं करते थे, मुशायरों में नहीं जाते थे, बल्कि उसके बजाय इन लोगों ने तबात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। ये नस्ल जो उभरी वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद इनके नाम नुमायाँ हुए, जिसमें ख़ास तौर से हैदराबाद से इकबाल मतीन और जीलानी बानू, जिन्होंने पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक अलहदा शिनाख्त बनाई। लेकिन जो लोग तरक्की पसंदी पे मजबूती से कायम रहे, उसमें सबसे नुमायाँ नाम आतिक शाह का है। और इन्हीं के हम असर लोगों में कुछ लोगों ने जदीदियत के असरात कबूल किए। मसलन एवज सईद जो पहले रिवायती कहानियाँ लिखते थे, उन्होंने जदीदियत का असर कबूल किया। नईम ज़ुवेरी बैन रहे, लेकिन आमिना अबुल हसन जो थी वो भी इन्होंने भी एतदाल का रवैया अख्तियार किया। ना वो पूरी तरह तरक्की पसंद थी ना जदीद थी, लेकिन एक इनका रवैया एतदाल का था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मकबूल रसायल में छपने को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, जिनमें इकराम जावेद हैं, इब्राहिम शफीक, रज़ा उल जब्बार और फरीदा ज़ैन, यासीन अहमद वगैरह। हैदराबाद में अदबी जलसा और मुशायरों की एक तहजीब रही है। क्या वक्त जिंदगी ने दिखाया है दोस्तों, अंधों के हाथ आईना आया है दोस्तों। क्या वक्त जिंदगी ने दिखाया है दोस्तों, अंधों के हाथ आईना आया है दोस्तों। जिसका सिलसिला आज तक भी जारी है। माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी,
मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। हैदराबाद के काबिल-ए-दीद इमारतों में जहां चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा, गुंबदान कुतुब शाही और टोली मस्जिद फन तामीर का नादिर नमूना है। इसके अलावा फलकनुमा पैलेस, हाई कोर्ट, उस्मानिया दवाखाना, जुबली हॉल आज भी काबिल-ए-दीद है। शहर में बेशुमार तफरीही मकामात मौजूद हैं। सालार जंग म्यूजियम की तो बात ही कुछ और है, जहां दुनिया भर के सयाह इसे देखने आते हैं और इन नवादिरात को देखकर अंगुष्ठ बदंदा हो जाते हैं। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जो मुश्तरका तहजीब की अलामत है। गौर से देखा जाए तो इसमें दो तहजीबों की अलामतें साफ नुमायां नजर आती हैं। इस पत्थर की इमारत का बालाई हिस्सा मुगल तर्ज तामीर की निशानदही करता है। ये एक तहजीब की अलामत है, जबकि जामे का ज़ेरी हिस्सा काकतिया तर्ज तामीर का एक आला नमूना है, जिसे हैदराबादी गंगा जमनी तहजीब की पूरी अक्कासी मिलती है। शहर के महलों के नाम भी उर्दू तेलुगु के लफ्जों को मिलाकर रखे गए हैं, जैसे शाहली बंडा, याकुतपुरा, नामपल्ली, खुदबीगुड़ा। इनमें बंडा, पूरा, गुड़ा तेलुगु के लफ्ज हैं। बेशतर नाम इसी ढप से वज़ा किए गए हैं। आज हैदराबाद हिंदुस्तान का 5वां बड़ा शहर है और ये शहर अपनी कदीम जोग्राफियाई हदों को पार कर चुका है। आज ये शहर कदीम तहजीब की अलामत भी है और जदीद रुझानात का आइनेदार भी। हिंदुस्तान भर में बेंगलुरु के बाद आईटी में सारी दुनिया में हैदराबाद को एक मुमताज मकाम हासिल हो चुका है। सारी दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर्स कंपनियां दफातर यहीं से दूसरे ममालिक के लिए काम करती हैं और कंप्यूटर के पेशे से जुड़े हुए हिंदुस्तान भर के नौजवानों के लिए हैदराबाद एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। शहर अपनी वुसअत में काफी फैल चुका है। कदीम व जदीद तामीरात ने शहर को एक नया रंग रूप दे दिया है। शहर में खूबसूरत मॉल्स, 5 सितारा होटलें, कई कारपोरेट अस्पताल भी हैं जहां सारी दुनिया से लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। उर्दू के अखबारात हैं, रसाइल हैं। हिंद और बैरून हिंद से रसाइल भी यहाँ आते हैं। अदबी महफिलों, अदबी कॉन्फ्रेंसों, आलमी मुशायरों के इनेकाद के लिए उर्दू घर, ऐवान उर्दू और उर्दू हाल से इस्तिफादा किया जाता है। आज हैदराबाद के उर्दू अखबारात असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। हैदराबाद के कुतुब खाने, आसिफिया लाइब्रेरी, निज़ाम ट्रस्ट लाइब्रेरी, अंजुमन तरक्की उर्दू की लाइब्रेरी न सिर्फ तशनगान उर्दू के लिए बायस कशिश बनी हुई है, बल्कि रिसर्च स्कॉलर इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद को हमेशा उर्दू ज़बान के लिए मरकजियत हासिल रही, इसलिए हुकूमत हिंद ने जामिया उस्मानिया के खतूत पर हैदराबाद में मौलाना आज़ाद कौमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, जहाँ तमाम पेशावराना कोर्सेस की तालीम बज़ुबान उर्दू दी जाती है, जिसमें बेशुमार तुलबा उर्दू में पेशावराना तालीम हासिल करके रोजगार से जुड़ रहे हैं। हैदराबाद खेलकूद में भी काफ़ी शोहरत रखता है। टेनिस में सानिया मिर्जा, बैडमिंटन में साइना नेहवाल के नाम सारी दुनिया में मशहूर है। क्रिकेट में अब्बास अली बेग, जैसी मां, आबेद अली के अलावा अजहरुद्दीन वीवी लक्ष्मण के नाम भी नुमाया है। हैदराबाद फुटबॉल के लिए भी काफी शोहरत रखता था। यहाँ के कई खिलाड़ी फुटबॉल के ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। हैदराबादी लिबास में खवातीन के लिए खड़ा दुपट्टा और मर्दों के लिए शेरवानी हैदराबाद की पहचान है। हैदराबाद अपनी तवाज़ुन में सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के खानों में बिरयानी, हलीम, बघारे बैगन, मिर्चों का सालन और मीठे में खुबानी का मीठा काफी शोहरत रखते हैं। मेरा शहर लोगां सु मामूर कर, रखिया जूं तू दरिया में मिन यासमी।